Here with me on behalf of Yes, and yes. who is else? Anyone else? Also, Vartika is also there with us. Anyone Yes, else? Richa. Richa. Risha. So Risha Sharma, Vartika, Parveen, and Naman Kumar, who is taking care of recruitment part of the on behalf of Axis Bank. So जो आप लोगों ने टीम रिक्रूटमेंट किया हुआ है ऑन दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस and these recruiters who are directly coordinating with the client they will be helping you all कि आप रिक्रूटमेंट में कहाँ पर मिस्टेक्स हो रहा है और जो कैंडिडेट अभी तक आपने सबमिट किया है व्हाट एवर द कैंडिडेट्स 50+ कैंडिडेट्स एंड ऑल उसका क्या फीडबैक है दैट यू कैन चेक इट आउट एंड simultaneously अगर आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एनी क्वेश्चन इज देयर you people can openly ask these questions one related to the Axis Bank requirement, no other question at all. Okay, so let me share the screen here. One second. Okay, so okay, Axis Bank. So Parveen and team, you had updated the sheet or not yet? Yes, bro. We have updated a sheet. I will share the all the comments on the sheet. Okay, okay, Data good, shared by you. good, no issue. Okay, so but remark column is showing blank. Wait, I will update it. I will Just check share it my out screen. because I will remark column share is my not. screen. Have you used any another sheet apart from this one? Yes, actually we used another sheet that because हमारे पास sheet का access नहीं था. That is the reason we मतलब No, used I have another given the sheet. access, the email ID that has been shared to me. Yes, you only give me the access, but someone else is working on that sheet. That is the reason we didn't mention. No, Parveen, I will tell you very frankly, before whatever the sheet we are sharing with you, on that sheet only you आपको access चाहिए तो whatever the जितने members आपके हैं, you tell me, I will give the access to them, we will add on. That's not a issue. But don't give the feedback on this separate sheet so that we can track it because अगर again दोबारा हमारे डबल वर्क हो जाएगा कि कॉपी वन sheet and one numbers because we have to do the tracking of all the candidates in one shot एंड बिकॉज माई टीम जो एक्सेस है उनके पास सिर्फ इसका एक्सेस है अब आपके पास एक नया सीट लेकर के आ जाएंगे तो दैट इज द प्रॉब्लम फॉर माई टीम जो कि डिफरेंट डिफरेंट टोटल 18 ऑफिसर्स अक्रॉस इंडिया हैं वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं गेटिंग माई पॉइंट तो प्लीज Sure. मेक श्योर कि जो हम नेक्स्ट टाइम में फीडबैक दें आपको जितना एक्सेस चाहिए यू टेल मी आई विल ऐड द ईमेल आईडीज 3 4 5 6 आई डोंट हैव एनी इशू ऑन दैट पार्ट बट प्लीज मेंटेन द ऑल द फीडबैक्स ओनली इन दिस सीट ओनली नो अदर सीट प्लीज Okay, no worries. From now onwards, we will ask you the all the feedbacks and all. But for this time, we will copy Okay, these no issue. feedbacks from our sheet. No issue. Yes. So, just a second. Can you share your screen, please? Yes. Yes. Yeah, I have just share already with me. shared. Is that visible? Yeah, it's visible now. Okay. So, as of now, 21 candidates feedback is there, right? Yes. Yes. Okay, ठीक है. तो अभी So क्या आपको नमन जी आप हमें क्लियरली ये जो फीडबैक आपको वही मिल रहा है टीम yes. से तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कुछ पॉजिटिव नजर नजर आ रहा है आपको रिजल्ट यस मैं वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो बेसिकली पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं वैसे तो मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा है हम्म नेगेटिव कम है हम्म तो जो शॉर्ट कमिंग्स है वो डिस्कस कर लेते हैं हम्म एक प्रॉब्लम ये आती है एक्सिस बैंक में अगर कोई कंप्लीट फ्रेशर है तो उसकी सैलरी फिक्स्ड है 15,000 सैलरी होती है अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है मान लो उसको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस है 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस है हम्म वो फ्रेशर एज ए फ्रेशर में ही काउंट होगा ओके जब तक उसको 1+ ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो उस ओके सिचुएशन में होता क्या है अगर 8 मंथ्स वाला बंदा है उसकी हम्म सैलरी ऑलरेडी ज़्यादा होगी जो हम्म हम OS2 में प्रोवाइड कर रहे हैं 1 ईयर्स के एक्सपीरियंस में हम्म तो अगर हम ऐसे कैंडिडेट्स लेकर आएंगे जो मतलब 6 मंथ्स या 8 मंथ्स 1 ईयर से कम है तो सैलरी इशू रहने वाला है हर जगह
अच्छा अच्छा, ये चीज़ हमें जो जेडी है ना, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था उसमें ये चीज़ डिस्कस नहीं हुआ था ये पॉइंट, नहीं तो आई थिंक हमारी टीम इसको भी रेक्टिफाई कर लेती। करेक्ट, राइट। करेक्ट। एनीवे, तो हाँ, टीम इससे रिलेटेड जो अभी नमन जी ने बोला कि जिसकी एक्सपीरियंस 6 मंथ से कम है, मतलब कंप्लीट फ्रेशर है, तो उसकी सैलरी आप क्लियरली 15,000 फिक्स कंपोनेंट, एम आई राइट नमन जी? यस, यस, ओके, 15,200। 15,200 फिक्स कंपोनेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा उनको कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव वगैरह सेपरेटली रहेगा। करेक्ट। राइट। 60,000 पर मंथ का इंसेंटिव रहता है, ओके। अप टू 60,000। अच्छा, फिर इसके सो बाद जो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनका क्या सैलरी रहेगा फिर? अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है उसको 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो काउंट होगा। अगर उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है हाँ। तो उसकी सैलरी रहती है 17,200 इन है, ओके। प्लस इंसेंटिव 60,000, हम्म। प्लस 2 लाख का लाइफ टर्म इंश्योरेंस और हम्म। 50 लाख तक का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये सब रहता है पहली हम्म। चीज़। इसके अलावा जो ये जॉब है हमारी ऑन रोल है एक्सिस में, हम्म। क्योंकि मैक्सिमम जो बीएफएसआई कंपनीज हैं या बैंक्स हैं ऑफ हम्म। रोल वर्क करवाती हैं क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए, अकाउंट सेल करने के लिए। हम्म। बट एक्सिस बैंक की ये जो जॉब है वो ऑन रोल एक्सिस बैंक में ही है, थर्ड पार्टी वगैरह जैसा कुछ सीन। नहीं है। ये यस। एक टीम आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि जो कैंडिडेट होंगे डायरेक्टली कंपनी के पेरोल पे होंगे, बैंक के पेरोल पे होंगे, ना कि कोई थर्ड पार्टी। जी। सैलरी पार्ट थोड़ा-सा मैं एक चीज़ अभी सभी टीम को क्लियर कर दूँ कि नमन जी का सीधे बोलना है कि अगर कंप्लीट फ्रेशर है तो 15,200 या 300 है, और अगर 1 साल से कम एक्सपीरियंस है तो उसको कितना मिलेगा? 15,300 ही? उसको हाँ एज ए फ्रेशर ही काउंट होगा और फ्रेशर वाली सैलरी ही मिलेगी। तो 15,300 ही मिलेगा, राइट? राइट, राइट। ओके, अगर 1 साल से ऊपर है तब उसको एक्सपीरियंस कंसीडर होगा। यस। ओके, और और उसको अगर उसको हाँ, एक चीज उसको और कितना है, सैलरी अगर मिलेगा उसको फिर? 17,200 इन हैंड। 17,200 रुपये अगर 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। ओके, ठीक है। तो अब मेरा जानना ये है कि ये जो 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो क्या कैंडिडेट सेम डोमेन में होना चाहिए, बैंकिंग, फाइनेंशियल, या किसी भी डोमेन हाँ, में हो? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि ज़रूरी नहीं है बैंकिंग डोमेन में हो, एनबीएफसी में हो। एक हुँ, चीज़ जो हमारे लिए मैंडेटरी है वो है फील्ड सेल्स में होना चाहिए हुँ। उसका एक्सपीरियंस। अच्छा। फील्ड में जाके जो सेल्स करी होती है, हुँ, हुँ, ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस, हुँ, तब वो एक्सपीरियंस कंसीडर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि और रेलेवेंट फील्ड हो तो मोस्ट कंसिडरेबल रहता है वो कैंडिडेट। हुँ, हुँ, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो सबको बताना चाहता हूँ, एक 2 इयर्स प्लस का अगर एक्सपीरियंस है किसी बंदे के पास और वो रेलेवेंट फील्ड में है, जैसे एनबीएफसी हो गया, बीएफएसआई में हो गया, क्रेडिट कार्ड सेल्स करी होगी, जियो वाले वो लगाए होंगे, अगर ऐसा कोई बंदा है और उसको 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। उसकी सैलरी अपनी 23,000 तक जाती है, नाइन तक। सर अनमन जी, इस जो असिस्टेंट मैनेजर की आपकी एलिजिबिलिटी बताया, सैलरी बताया, इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट मिलता है जिसको 2 इयर्स के ऊपर का एक्सपीरियंस है, हम्म। फील्ड सेल्स होना चाहिए और रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड फील्ड जो भी होगी, हम्म। जैसे एनबीएफसी हो गया, बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इन सब में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट रहता है तो उसको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए हम भेज सकते हैं। हम्म। बट उसको इंटरव्यू में क्लियर होना पड़ेगा और उसकी ठीक। सैलरी 23,000 प्लस रहेगी, 23 इन हैंड रहेगी। ओके। टीम में आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये कॉल ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पे है, तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग, अगर कोई मिस करता है, जो भी रिक्रूटर यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो आप लोग हमसे ये वीडियो ले लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको वॉच कर लीजिएगा। बट प्लीज मेक इट श्योर कि आप लोगों के कोई डाउट्स रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट होना नहीं चाहिए, इसीलिए हमने डायरेक्टली आप लोगों को बुलाया। जी। नमन जी। नमन जी, ओवर टू यू। हाँ सर।
सो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन थी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, बट अभी जैसे कल राजन सर से आपका डिस्कशन हुआ होगा कि हम अभी कल राजन सर से आपका डिस्कशन हुआ होगा कि फ्रेशर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम। हम्म तो अभी हम फ्रेशर्स पे ही फोकस करें अभी ज़्यादातर, तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या एक्सपीरियंस अगर हमको मिलता है, जैसे इस डेटा में कुछ कुछ कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस, तो उनको कंसिडर कर सकते हैं, बट अभी इस केस में 6 मंथ्स 8 मंथ ऐसा एक्सपीरियंस था। तो ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली प्रेशर में कंसीडर होंगे, कोई करेक्ट, इशू नहीं है। और करेक्ट। उनको कैंडिडेट आप लोग ये भी बोल दीजिएगा कि अगर आपका रिलीवेंट एक्सपीरियंस 1 साल से कम है तो हम आपको हाँ, फ्रेशर ही कंसीडर करेंगे। करेक्ट, ठीक करेक्ट। है, तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर कट करके रखे चलेंगे, जिससे कल का कैंडिडेट कभी ये ना बोले कि सर आपने हमें तो 2.4 लाख का बताया, फिर यहाँ पे 1.8 लाख का मिल रहा है। तो उनको ये चीज़ क्लियर, क्योंकि ठीक, थोड़ा सा ये चीज़ मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ है। हाँ जी। ठीक है। तो सर एक बार मतलब अभी फ्रेशर्स पे ही फोकस रखते हैं पहले। हम्म एक्सपीरियंस अगर मिलता है, मतलब खुद से अपने एफर्ट्स लगा के सोर्स नहीं करते हैं एक्सपीरियंस। हम्म फ्रेशर्स ज़्यादा से ज़्यादा बल्क हायरिंग में हम दे सकते हैं। हम्म तो फ्रेशर्स पर भी फोकस रख सकते हैं। मीनवाइल अगर डेटा में कोई कैंडिडेट्स मिलते हैं जिनको एक्सपीरियंस है, हम्म तो उनको भेज सकते हैं हम अलग से। बट ओके। अलग से एफर्ट डाल के हम एक्सपीरियंस अभी सोर्स नहीं कर सकते। हम्म ऑल आह, राइट। यही इंसाइट्स है। और बाकी एज रिगार्डिंग सैलरी जो था अभी, तो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होंगे। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा जिसमें एग्जैक्ट फिगर्स लिखे होते हैं, कितना इंसेंटिव मिलेगा, कितनी इन हैंड आएगी। हाँ, तो तो अभी मेरा मेरा ये है नमन जी, कि एक काम करिए कि हमें या क्या अभी हमें एक दो ऑफर लेटर जो कैंडिडेट के हुए हों आपके पास हो, तो क्या उसको ब्रेकअप जो सैलरी का है उसको हमें शेयर कर दीजिए टीम के साथ, जो उनको जिससे उनको क्लैरिटी हो जाए, मोर क्लैरिटी। बिल्कुल, मैं वही आपके साथ शेयर कर दूँगा। हाँ, ऑफ़र अगर को लेटर तो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट मैं नहीं, वहाँ मतलब से सैलरी, कॉपी करके जो सेंड सैलरी का ब्रेकअप पार्ट है करेक्ट, वही। वो आप हमें शेयर कर दीजिए, जिससे भाई हमारे जो टीम है उसको क्लैरिटी हो जाए। बिल्कुल, वो सैलरी का पार्ट मैं आपको एकदम हम्म, शेयर कर दूँगा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, तो आपकी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो अभी आपको जो डाटा आपने कॉल कराया नमन जी, उसमें अभी आपको मतलब आई थिंक 21 ही कैंडिडेट को कॉलिंग हुआ है, तो उसमें देख रहा हूँ कि ओके, सो इंटरेस्टेड डिग्री नॉट अवेलेबल, डीएल अप्लाइंग, ओके हाँ, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट कनेक्टेड। तो टीम जिसका यहाँ पर फीडबैक नॉट कनेक्टेड है, आप लोग उनको फॉलो कर लीजिएगा। इंटरेस्टेड बट सैलरी इशू नॉट वर्किंग, क्रेडिट कार्ड 8 मंथ। ओके, सैलरी इशूज में इनका क्या, सैलरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है? हाँ सर, जैसा मैंने बताया आपको कि 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट्स आएँगे हाँ। जिनको 6 मंथ का है। यहाँ तो कंसीडर नहीं हो सकता, पर उसकी सैलरी ऑलरेडी ज़्यादा है। हम्म तो यही प्रॉब्लम है। वो ओके 1000 टीम। के लिए स्विच नहीं करेगा। ओके, तो टीम एक काम करिएगा, आप लोग रिकाउंसलिंग करिए उसको। ठीक है, अगर हो सके कन्वर्ट करिए कि उसको एटलीस्ट हो सकता हो कि अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, सेल्स एटीट्यूड ठीक हो, हुँ, अपॉर्चुनिटी उसको मिल करेक्ट, जाए। राइट। अगर उसने अप्लाई किया है, अगर 1,000 रुपये की बात है, तो हो सकता हो कि कभी कभी मैनेजमेंट होता है, जो बैंक का एचआर मैनेजर होते हों, वो थिंक आउट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, प्रेजेंटेबल है, टॉकेटिव है, तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। तो यू जस्ट टॉक टू देम, कि उनको सीधे बोलिए कि एटलीस्ट यू शुड अटेंड इंटरव्यू, देन ओनली वी कैन डिसाइड कि आपको हम ऑन बोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब आप इंटरव्यू नहीं अटेंड करोगे तो हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं? हुँ, तो 500 या 1000 रुपीज के लिए अगर कोई कैंडिडेट रुक रहा है, तो उसको आप इंटरव्यू के लिए लाइन अप करिए, उसको होल्ड मत करिए जी। ठीक है। एक प्रॉब्लम ये आई थी सर कि जैसे ग्रेजुएशन की प्रॉब्लम है। ग्रेजुएशन की प्रॉब्लम ये है, ग्रेजुएटेड ग्रेजुएटेड तो हैं सारे कैंडिडेट्स, हम्म बट या तो रिज़ल्ट नहीं आया हुआ या फिर ग्रेजुएशन मार्कशीट नहीं है। हाँ, ये जब तो। हमारी फ्रेशर्स की जॉइनिंग होगी ना, जॉइनिंग हाँ, में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 10 डेज़ लगेंगे। ओके। 7 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 3 डेज़ हम लेके चलते हैं रिज़ल्ट वगैरह आने में। 10 टू हम्म 15 डेज़ का टाइम लगेगा। हम्म तो अभी जैसा कोई कैंडिडेट है जिसने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे चुका है, बट उसके पास मार्कशीट नहीं है और डिग्री नहीं है। डिग्री हम्म आने में थोड़ा टाइम लगता है।
हम्म। तो प्रोविजनल डिग्री भी हम चलवा सकते हैं, काम चल जाएगा। हम्म। बट अगर किसी के पास प्रोविजनल भी नहीं है, तो अगर हमने उसको ट्रेनिंग में डाल दिया, हम्म। तो अब जब ज्वाइनिंग की बारी आएगी तो वो अटक जाएगा वहीं पे जब तक उसकी डिग्री नहीं आएगी। तो हाँ, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हम, हाँ, ड्रॉप या करना तो पड़ बोर्ड जाएगा। पे डाल सकते हैं। हाँ, हाँ, तो टीम आप लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई देखो हम रिस्क नहीं लेंगे। हमें वही कैंडिडेट आप दीजिए जिसके पास ऑलरेडी डिग्री है और जो कि हमारी ऑनबोर्डिंग को कंप्लीट करा सके 15 दिन के अंदर। क्लियर? सर एक पॉइंट और है कि हाँ। जो हमारा एग्ज़ाम होता है एक्सिस बैंक का, उसके अंदर जब वो फॉर्म फिलअप करेंगे, टेस्ट देंगे, हाँ। तो उनको 21 से लेके 28 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर कोई कैंडिडेट एज एग्जांपल आज ही 28 साल का हुआ है तो भी मैं उसको नहीं ले सकता। नहीं, नहीं, मैं समझा नहीं, मतलब जो ये फाइनल एग्ज़ाम होगा आफ्टर 6 डेज ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, तो उसमें हाँ, आप बोल रहे हैं कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 टू 28, राइट? यस, हाँ, हाँ। 21 टू 28 होनी चाहिए, बट उसके बीच में होनी चाहिए। कई कैंडिडेट्स आते हैं कि मैं इसी महीने 28 हो गया हूँ, तो वो नहीं चलेंगे। मतलब 28 के अंदर होना चाहिए। मैं समझा नहीं, मीन्स आप ये बोलना चाहते हैं जो 28 अगर उसने टचअप कर लिया है 20, मान लीजिए तो कोई हाँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई कैंडिडेट 28 मंथ 28 मंथ 1 मंथ 28 ईयर्स 1 मंथ हो चुका है, तो उसका तो होगा उसको या नहीं नहीं ले होगा? सकते, नहीं होगा। उसका नहीं अगर होगा। मेरा आज बर्थडे है 28 हुआ और मैं हो चुका हूँ 28 का, तो भी वो सिस्टम नहीं लेगा, क्योंकि वो ओ, ऑटोमेटेड जनरेटेड रिप्लाई होता है वहाँ पर। हाँ। वो पूरा कैप्चर होता है, 28 के अंदर होना चाहिए वो। ओके, तो टीम आपको ये ध्यान देखनी है कि कोई कैंडिडेट 21 ईयर्स प्लस 1 मंथ से ऊपर है और 27 ईयर एंड 12 मंथ से नीचे, 11 मंथ तक के है। आप इसको देख लीजिए, करेक्ट ना? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, चलिए। ओके। इसके अलावा मतलब काफ़ी कैंडिडेट इंटरेस्टेड आए थे, तो हम्म। डेटा सही है। कुछ कैंडिडेट्स ने कॉल पिक नहीं करा, तो ऐसा तो हर डेटा में होता है वैसे तो। नहीं, उसको तो हम रिकॉलिंग करा देंगे, अभी मैसेज डला देंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है कि 250 से 350 कैंडिडेट का टारगेट हमने रखा है, तो इसको हम क्लोज अच्छा। कर लेंगे, उसका इशू नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो हमारा ड्राइव है हम्म, इसको हमें क्लोज करने का। हम्म। ठीक है। और सर एक लोकेशन का इशू भी आ रहा है थोड़ा। हाँ। जैसे गांधीधाम हो गया, भुज हो गया, हाँ। अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, वलसड ओके। और भरूच, हाँ। इन लोकेशंस पे वैकेंसी अभी आई है सेंट्रल टीम की तरफ से। ठीक है। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हो इस डेटा में कोई दाहोद, ये जो जगह है यहाँ की कोई वैकेंसी अभी है ना। तो हाँ। एज पर वैकेंसी अगर सोर्सिंग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो अभी मैं टीम आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन, नमन जी। ओके, तो आप, मैं अभी जो ये हमारे पास मेल आया था, हाँ सर। तो ये मेल है लोकेशन का। तो अभी इन सब जगहों पे जो ये अहमदाबाद, सूरत, नौशारी, वलसाड़, गांधीधाम, तो इन सभी पे इंटरव्यू होगा या कौन सी लोकेशन पे इंटरव्यू हमारी टीम स्टार्ट करे? इन सभी ये जो लोकेशंस दी हुई है ना, ड्राइव एड्रेस का मतलब ये है इसी एड्रेस पे इंटरव्यू होगा। तो अभी जो पहला ड्राइव होगा वो कहाँ पे होगा? अहमदाबाद से स्टार्ट करेंगे तो अहमदाबाद का जो एड्रेस दिया गया है इस पे होगा? अगर अहमदाबाद का कैंडिडेट है, अहमदाबाद लोकेशन का, तो अहमदाबाद वाली लोकेशन पे जाना पड़ेगा उसको इंटरव्यू। ठीक है। तो और इसका भी टाइमिंग है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कैंडिडेट अपने नियरेस्ट जो ये लोकेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, हाँ, इन लोकेशन में से किसी लोकेशन को अटेंड कर सकता है, करेक्ट? उसके नियरेस्ट से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उसको पोस्टिंग कहाँ चाहिए। ओके, 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 गॉट किसी इट, को समझ। अहमदाबाद में जॉब करनी है तो वो इस लोकेशन पे जाएगा इंटरव्यू देने। हाँ, डेफिनेटली जब उसको जो भी उसको सुटेबल पड़ेगा तो उसको ये हम ऑप्शन दे सकते हैं कि ये इन सब लोकेशन पे हम इंटरव्यू ड्राइव कर रहे हैं, एंड आप हमें बता दीजिए कि कौन सा आपको सुटेबल पड़ेगा, अकॉर्डिंगली हम उनको एड्रेस शेयर कर सकते हैं और आपके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है राइट? सर।
हम्म। अभी जो ये एक लिखा हुआ है ऑल क्लस्टर्स ऑफ पुणे, तो ऑल क्लस्टर जितने पुणे का एक ही क्लस्टर पे इंटरव्यू होगा? आपका मतलब गुजरात का है या पुणे का है? नहीं, अभी हमारी जो टीम है पूरे पैन इंडिया की जितनी हम, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट डिस्कशन हुआ था वो ये था कि अभी हाँ, हमें फोकस करना है गुजरात पे भी, पुणे का भी है, बेंगलोर का है, देहरादून का है। तो हमारी टीम सब पे काम करे तो आपको डेटा धीरे धीरे सबका मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब अच्छा। से कल का अभी नागपुर का स्टार्ट हो जाएगा या पुणे का स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में इनका जो अभी सेंटर लोकेट हुआ है इसी सेंटर पे होगा, राइट? करेक्ट। तो पुणे में क्लस्टर्स का मतलब ये है कि पुणे का एक क्लस्टर बनाया हुआ है, उसके आसपास की जो लोकेशंस है उन सब का क्लस्टर बनाया हुआ है। तो हाँ। ऑल क्लस्टर्स ऑफ पुणे का यही मतलब है, जो सारी लोकेशंस मिला के सब में वैकेंसी 50 है, जो हम्म। ये गैप के नाम से दिखाया हुआ है। हम्म। तो इसमें एक और हमारे पास राइव कैलेंडर आता है जिसके अंदर ब्रांच वाइज वैकेंसी होती है कि हम्म। ब्रांच कौन कौन सी है, उसमें कितनी वैकेंसी ये होता है, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। हम्म। तो अभी एज अ ट्रायल था डेटा का, तो हमने शायद वो प्रोवाइड नहीं कराया अभी आपको। हम्म। तो जैसे ही हम वर्क करने लग जाएंगे क्लोजली, तो वो सारी हम इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। वेल, नो इशू। तो अभी ये जो टीम है जो जिनका भी अपने 21 का ही फीडबैक दिया है, तो रिमेनिंग का फीडबैक मेरा रिक्वेस्ट यही है, जो मास्टर शीट हमने शेयर किया है इसी में ही अपडेट करिए, जिससे हमारी जो प्रॉपर टीम जिस पे जैसे आप जब रिमार्क डालेंगे ये कैंडिडेट कॉल पिकअप नहीं किया, तो इमीडिएटली जो हमारी टीम है जो उसने रिक्रूटमेंट किया है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का, इमीडिएटली वो फॉलो करके वो आपको शीट में अपडेट कर देगा। क्लियर? ठीक है, तो बिल्कुल सर, मैं इसलिए सीट को एक ही सीट को रहने दीजिए, जिससे आप हमें जितना एक्सेस चाहिए आप हमें बता दीजिए। आई विल ऐड द ईमेल आईडी, दैट्स नॉट अ इशू। नाउ ठीक है। स्पेसिफिक आप थोड़ा सा हमारी टीम को ये बताइए कि इंटरव्यू तो ये ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपके अनुसार फीडबैक ही जो भी है पॉजिटिव लग रहा है, बट अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इनको इंटरव्यू लेते समय या स्क्रीनिंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है? बिल्कुल। तो सर सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है, जो मेनली कैंडिडेट्स वहाँ इंटरव्यू में जाके नहीं बोल पाते हैं। एक चीज़ ये होती है कि वो सेल्स को गलत तरीके से ले लेते हैं कि हमें फ़ोन पे सेल्स करनी है, किसी और जगह जाके सेल्स करनी है। तो उनको क्लियरली समझाना है कि फील्ड सेल्स का काम है, मतलब आपको कस्टमर बनाने बाहर फील्ड में जाके, हम्म। ब्रांच में रहने वाली जॉब नहीं है, सिटिंग वाली जॉब नहीं है। हम्म। आपको रोज आना है, मीटिंग में बैठना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको बाहर जाके अकाउंट्स ओपन करने, फील्ड में जाने का वर्क है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो ये क्लियर करना है एक तो। उसके अलावा एक डीएल और बाइक होना कंपलसरी है, तो इन दोनों का प्रॉपरली ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन वाला मैंने बता ही दिया, एज क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया। हम्म। और कोई भी कैंडिडेट है अगर वो इंटरव्यू में जा रहा है, अगर वहाँ जाके वो मना करता है कि मुझे तो फील्ड सेल्स नहीं करनी है, मेरे को सेल्स बताया गया, तो बहुत ही रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए पहले से एक बार उसको जेडी क्लियर करके चल सकते हैं कि फील्ड सेल्स का वर्क है। बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं जो ओके। हमें ध्यान रखनी है। बाकी जैसे जैसे हम वर्क करेंगे और भी डाउट्स आएंगे तो आप पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा सारे ओके, डाउट्स। सो टीम हमें जो मेन क्लैरिफिकेशन ये रखना है कैंडिडेट को कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन जेडी का क्लियर होना चाहिए, उसको क्या काम करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये फील्ड सेल्स है, उसको कासा प्रोडक्ट पे काम करना है। आई थिंक अभी कासा ही चल रहा है, राइट नमन जी? हाँ सर। हाँ। तो कासा प्रोजेक्ट मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलने का काम होगा, तो उसको सीधे बोलिए फील्ड वर्क रहेगा अगर इंटरेस्टेड हो और आप काम कर सकते हो। बाकी ट्रेनिंग सपोर्ट सब कुछ रहेगा, मैनेजमेंट सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं कि आपको कोई काम नहीं करे तो तुरंत 1 महीने में ही फायर कर देगा। बैंक का एक प्रोसेस होता है और इतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको उसको काउंसलिंग रिकाउंसलिंग मोटिवेट करके ही रखना पड़ेगा। मेक श्योर कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। उसको अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है कि आपको इंटरव्यू में कैसे ट्रेनिंग देना है, क्या इंटरव्यू में आंसर देना है, या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको मोटिवेट करिए कि आपको इन तरह के प्रश्नों के, तो बेसिकली थोड़ा सा नमन जी आप इनको, हमारी टीम को ये भी गाइड करिए कि ये जो कैंडिडेट्स होंगे उनको बेसिकली तौर पे किस तरह के क्वेश्चंस, एक एचआर नॉर्मली तौर पर सेल्स इंडस्ट्री में, इवन हम जानते हैं आप जानते हैं, बट हमारी टीम को आप ब्रीफ करिए कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली 2 पार्ट होते हैं इंटरव्यू के। सबसे पहले तो एचआर इंटरव्यू लेता है,
फेस टू फेस। उसके बाद होता है टेस्ट। तो एचआर जब इंटरव्यू लेगा तो बेसिकली क्या टेस्ट करता है कैंडिडेट में कि ये फील्ड सेल्स में टिक भी पाएगा या नहीं टिक पाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, शुरू के 1 वीक में 10 दिन में ही छोड़ के चले जाते हैं कि फील्ड हाँ। सेल्स है, हमसे तो नहीं होगा। हम्म। तो उसी तरह के क्वेश्चंस उनके पास आएंगे। एचआर उनसे पहले शुरू में पूछेगा क्या करते हो, घर में कितने लोग हैं, ये सब जानने की कोशिश करेगा कि इसको ज़रूरत है जॉब की तभी रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। क्योंकि अगर जिस बंदे का काम चल रहा है बिना फील्ड सेल्स के, वो कभी फील्ड सेल्स नहीं करना चाहेगा। हाँ। तो सबसे बेसिकली तो ये स्क्रीनिंग होती है। इसके बाद एचआर खुद की तरफ से डराने के लिए क्वेश्चंस पूछता है कैंडिडेट से कि अगर अभी छोड़ना है तो ये अभी छोड़ देगा, बाद में 10 दिन बाद बोलेगा तो दिक्कत आ जाएगी। हम्म। तो डराने के लिए उसके क्वेश्चंस आते हैं कि बिल्कुल फील्ड में जाना पड़ेगा, धूप में जाना पड़ेगा, पूरे हम्म। दिन फील्ड में ही रहना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, कर लोगे नहीं करोगे। हम्म। तो वहीं आधे कैंडिडेट्स तो वहीं मना कर देते हैं, नहीं हो पाएगा। हम्म। तो बेसिकली उनको यही समझाना है हमें कि आप जाते हैं एकदम कॉन्फिडेंस से बोलिए हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ सेल्स करने के लिए, मैं कर लूँगा। बस यही ध्यान रखना है। ओके। सो टीम आपको जब रिक्रूटमेंट करिए तो इसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैंडिडेट को हाउ टू मोटिवेट, कि उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनको अंदर डेवलप करना है। और वो जब इंटरव्यू पार्ट में जाए तो वो इतने कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ, अगर वो सीधे बोलते हैं कि देखो एचआर है, वो पूछेगा क्वेश्चन, डेफिनेटली पूछेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहता है कि इसकी पोटेंशियल कितनी है रिस्क लेने की। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप सेल्स क्यों करना चाहते हो, वाई ओनली सेल्स ओनली, आप ये बैंक का जॉब क्यों करना चाहते हो। आपकी वो कभी ये भी पूछ सकता है कि आपकी कस्टमर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप कहीं आईटी सेक्टर में या कहीं और जो सेक्टर में क्या ट्राई कर सकते हो। सो मेनी क्वेश्चंस वो रेज कर सकता है, बट एंड ऑफ द में आपको उसको ट्रेन करना है और उसको बोलना है कि सर माई पैसन इज टू इंटरेक्टिंग विद द पीपल। मेरा पैसन है कि लोगों से इंटरेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना और एक प्रोफेशनल रिलेशन को डेवलप करना, दैट इज माई हॉबीज। अगर इस तरह के आप उसको ट्रेन कर पाओगे तो डेफिनेटली वो कैंडिडेट उसके अनुसार रेडी रहेगा। बट डोंट वरी, जो आपकी कैंडिडेट्स होंगे वी विल ट्रेन टू देम, बट मीन टाइम जब रिक्रूटमेंट करो तो उनको मोटिवेट करो, उनको डिमोटिवेट, उनको जो फियर ऑफ लॉस है ना उनके अंदर से निकालना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जो फ्रेशर कैंडिडेट होता है उसके अंदर थोड़ा सा एक झिझक होती है, बट दिस इज माई जॉब टू हेल्प देम। या हाँ, अभिनंदन, डू यू हैव एनी क्वेरी? You have to raise your hand. अभिनंदन, योर क्वेश्चन। ये सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कैंडिडेट फील्ड में जा रहा है तो उसको फ्यूल वगैरह मिलेगा? नहीं, फ्यूल का अलाउंस नहीं मिलेगा, फोन कॉल का अलाउंस मिलता है एक्सिस में। तो नमन जी, अगर फ्यूल नहीं मिलेगा तो 15,000 रुपये में उसको मैनेज करना पड़ेगा फिर। हाँ, फ्यूल का यही रहता है कि एक्सिस बैंक में फ्यूल का अलाउंस नहीं है, बट कॉलिंग का अलाउंस है। कॉलिंग का अलाउंस है। हाँ अच्छा, डेटा सपोर्ट उसको ही कलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, डेटा उसको ओके। ही कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो अच्छा काम करता है तो आगे जाके जो बैंक में लीड्स आती है, न्यू टू बैंक कस्टमर्स आते हैं, ओके। फुटफॉल जो होता है वो उसको दिए जा सकते हैं आगे जाके। ओके। सो हम तो तब इसका मतलब हम ये समझे हैं कि अगर हम फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर 15,000 रुपये दिया जा रहा है तो सिंपली वो कैंडिडेट बोल सकता है ना, सर आपने तो 15,000 बोला, यहाँ तो हमारा 100 रुपये का डेली का पेट्रोल ही चला जा रहा है, तो 12,000 रुपये नहीं, ही बचे फिर। ऐसा नहीं होगा, 100 रुपये का डेली का पेट्रोल नहीं जाएगा। हाँ। ऐसा होता है कि हर ब्रांच का एक कैचमेंट एरिया होता है, ओके। मतलब उसी एरिया के अंदर अपन को अकाउंट्स ओपन करने रहेंगे। तो ओके। जैसे आपका भी कभी अकाउंट होगा तो आप ऐसी ब्रांच में नहीं खुलवाना चाहोगे जहाँ पे आपको बार बार जाना पड़ रहा है, बहुत दूर ब्रांच में अकाउंट खुलवा लिया। तो हमारे कस्टमर्स वही हैं जो आसपास के हैं, कैचमेंट एरिया के अंदर कर रहे हैं। तो इतना ट्रैवलिंग नहीं होगा, ट्रैवलिंग तो करनी होगी बट इतना नहीं होगा कि आपका बहुत ज़्यादा फ्यूल लग जाए। अच्छा अच्छा। ये इसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या है, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कुछ मटेरियल है आपके पास? सर, इंसेंटिव स्ट्रक्चर बहुत इजी है। पर अकाउंट आप एक दिन आपने पर अकाउंट के आपको इंसेंटिव मिलेंगे। आपने चाहे करंट अकाउंट खोला हो, सेविंग अकाउंट खोला हो, आपको पर अकाउंट पे इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव ब्रांच वाइज वेरी करता है, बट
जो मैक्सिमम कैप है वो 60,000 पर मंथ की है। हर मंथ के एंड में सैलरी के साथ इंसेंटिव लग के आ जाए। कितना बताया आपने? 60,000 मैक्सिमम। 60? यस 60। अच्छा 60 16 और 60? 60। 60 तो 60,000 रुपीज ये इंसेंटिव कंपोनेंट, मतलब इतना कैंडिडेट उठा सकता है अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, काम यस। करने की क्षमता है। तो डेफिनेटली जब आप इस चीज़ को टीम नरेट करोगे कि देखो जी इंसेंटिव स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कितना हाई इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, अगर आपने अच्छा काम किया तो पर अकाउंट पे आपको सैलरी तो फिक्स मिल ही रही है, बट उसके साथ साथ आपको इंसेंटिव कंपोनेंट, तो आप आराम से मिनिमम 5 to 10,000 रुपीज़ का इंसेंटिव भी मिनिमम गिरे भी हालत में आप कमा यस। सकते हो। तो आपको इसको चीज़ को नरेट करना पड़ेगा जी। और इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट बोलता है कि सैलरी कम है तो हम उसको ये बता सकते हैं कि एक तो पर अकाउंट खोलने पे इंसेंटिव है। हाँ उसके अलावा अगर पूरा टारगेट हो जाता है उसका पर मंथ का, उस पे अलग से इंसेंटिव है। अच्छा, तो कितना ठीक टारगेट है। होता है एक एक 20 20 आपको सेल करने, 20 प्रोडक्ट्स को कुछ भी हो सकते हैं बैंकिंग के, ओके और पर डे का एक अकाउंट आपको लाने लगा। ओके तो ये बेसिक बेसिक टारगेट्स हैं एक्सिस बैंक में। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर उसको कोई भी लोन लेना है बैंक की तरफ से तो उसको डिस्काउंट मिलता है लोन पर। हम्म तो और भी सारे बेनिफिट्स हैं बैंक के जो सब उसको मिलेंगे। ठीक अगर है किसी को ईवी लेनी है तो उस पे भी डिस्काउंट है, कोई बाइक खरीदनी है उस पे भी डिस्काउंट है, ये सारे डिस्काउंट उसको मिलेंगे। उसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो है ही बैंक की, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें। हम्म ऑलराइट, ठीक है टीम, योर क्वेश्चन। अभिनंदन, यस सर। मल्टीपल क्वेश्चंस आस्क। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लीज आस्क ऑल योर क्वेश्चंस, जस्ट रेज द हैंड। आप लोग दोबारा मत बोलिएगा कि मेरे को डाउट रह गया, मेरे को ये नहीं पता है, प्लीज। हिमांशु, सर जैसे मेरी अभी नमन जी म्यूट करिए प्लीज। सुमित। सुमित ऑफ योर माइक्रोफोन। सुमित। ओके यश अभिनंदन। यस सर, जैसे नमन जी ने बताया कि 10 मतलब लोकल रेडियंस में इनको जाना रहेगा, फिर भी लोकल में जाएंगे तो भी सर कम से कम अराउंड नियरेस्ट एरिया में जाएंगे तो भी कम से कम 10 से 20 15 किलोमीटर तो हो जाता है सर। ठीक है, इतना तो डेली में इनका आना जाना रहेगा 10 15 किलोमीटर। ठीक है, बट ऐसा है कि और सारे बेनिफिट्स हैं, इसकी वजह से ये वाला अलाउंस नहीं दिया गया है इसमें। ओके ऑलराइट। सो अभी ये चीज़ हम पार्ट क्लियर करेंगे जब हमें नमन जी आप सैलरी स्ट्रक्चर और इंसेंटिव स्ट्रक्चर अगर आप हमें शेयर कर देंगे करेक्ट, तो उससे वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे लिए ये टीम को समझाने में और जो कैंडिडेट हैं उनको भी समझाने में, काउंसलिंग करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमें वो कंप्लीट ब्रेकअप दे दीजिए और जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, सो दैट टीम उसके अनुसार प्रॉपरली रिक्रूटमेंट करके आपको हैंड ओवर करेगी। मेरी टीम से वर्तिका है जो मतलब कैंडिडेट से बहुत बात करती रहती है, तो वो कुछ पॉइंट्स क्लियर कर सकती है अगर कोई कैंडिडेट रेज करता है क्वेरी कि पेट्रोल अलाउंस नहीं मिलता है तो कैसे कन्विंस करते हैं कैंडिडेट्स को और क्या हम्म, बेनिफिट्स हैं। तो वर्तिका थोड़ा अच्छे से बता सकती है। वर्तिका प्लीज। Hello, everyone. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। गुड Uh, आफ्टरनून। जैसे अब आपकी एक क्वेरी थी कि अपन पेट्रोल अलाउंस नहीं लेते हैं, तो पेट्रोल अलाउंस के अलावा अपन को और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस बता सकते हैं। इनको एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस में दिया जाता है 4 लाख तक का। इनको ग्रुप लाइफ टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है इंक्लूडिंग फैमिली 50 लाख तक का। ठीक है, इनको मोबाइल बेनिफिट दिया जाता है, इनको पीएफ ईएसआई दिया जाता है। साथ ही में इनको है ना हर पर अकाउंट, मतलब इनने पर अकाउंट ओपन किया, इनको पर अकाउंट पे इंसेंटिव्स है। और जब ये टारगेट पूरा करते हैं तो इनको वो इंसेंटिव 60,000 रुपीज का वो अलग भी है। तो ओके बेसिकली अगर कैंडिडेट कंफ्यूजन है कि अगर हमें नहीं मिला है
पेट्रोल अलाउंस। तो आप उसको कह सकते हो कि आपको पेट्रोल अलाउंस नहीं दिया है, उसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स और दे रखे हैं। आप पेट्रोल अलाउंस नहीं कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल अलाउंस में भी इनका ये होता है कि इनको एक मैप रीजन दे दिया जाता है कि एक क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अंदर ही अपन को कैंडिडेट्स लेकर आने हैं और उनके अकाउंट्स ओपन करना है। तो जैसे सो इनके पर डे का 100 रुपीज वुड बी पॉसिबल कि इतना उनका पेट्रोल जाएगा। करेक्ट, ओके। सो ये जो 60,000 रुपीज का इंसेंटिव है वर्तिका जी, यस। ये 20 अगर उनको अकाउंट क्लोज कर देते हैं तो आई थिंक 60,000 फिक्स है, करेक्ट, मिनिमम। यस। यस। आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर इंसेंटिव कोई नहीं दे सकता, तो और टीम इनको पर आपको। अकाउंट ओपन करने पे भी है ना, बताओ, इंसेंटिव मिलता है। ओके, तो वो इनकी कवर हो बेसिक जाएगा। सैलरी हो गई है, हम्म, इनकी ग्रॉस सैलरी है 18,500। हम्म, इनको इन हैंड सैलरी मिलेगी 15,500। ठीक ओके, है, ये हो गए इनकी बेसिक सैलरी। इफ हम्म, दे ओपन वन अकाउंट इन अ वन डे, उनका इंसेंटिव इनको अलग मिलेगा। हम्म, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो उनका पूरा टारगेट पूरा कर लेते हैं तो उनको 60,000 प्लस तक का मिलेगा। राइट, क्लियर। या गरिमा, योर क्वेश्चन। तो टारगेट फिर क्या रहेगा? मतलब इसमें टारगेट कितने अपन कितने अकाउंट्स ओपन करवा देंगे तो उनका टारगेट अचीव हो जाएगा, ये वही पता चलेगा? या फिर जैसे मतलब कोई पूछे अपने से कोई कैंडिडेट, तो अपन उनको बता सके कि मिनिमम इतना टारगेट रहता है या मैक्सिमम इतना रहता गरिमा, है, ऐसा कुछ? हर जो ब्रांच होती है उसके अंदर हर ब्रांच में एक सेल्स मैनेजर होता है, तो हर सेल्स मैनेजर अलग अलग टारगेट देता है। बट अभी तक जैसा हम एवरेज निकालें तो मिनिमम 20 अकाउंट एक महीने में खोलने होते हैं, तो ये सबसे एवरेज, सबसे कम जो टारगेट है वो ये है, और पर डे ओके एक अकाउंट लेके आना है। ठीक है। ओके 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 सर, थैंक यू। ओके, ये ये सब। सनी, सनी, हिमांशु, अभिनंदन, इन सबको भी कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो फर्स्ट यस मैम सर सर वन वन। सनी म्यूट करो, यूनियन म्यूट करो तुम। मेरा क्वेरी ये था सर कि जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट को रेफर करते हैं या कहीं भी भेजते हैं, तो उनको अलाउंस भी बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जानकारी लेना। जैसे मैम बता रहे हैं कि 15 किलोमीटर के रेंज में ही वर्किंग रहेगा उनका, बट अगर किसी कारण से अगर उनको बाहर जाना पड़ जाए या अकाउंट ओपनिंग करना पड़े, कोई कस्टमर बोल दे, उनका कोई रिलेटिव हो या फिर कुछ भी हो सकता है, बाई चांस के लिए कोई रिलेशन में हो, वो भी बोल दिया भाई हमारा एक रिलेशन है, वो वहाँ खुलवाना चाहता है, तो क्या फिर उसके लिए कोई अनाउंस वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको जाने पर या आने पर? हिमांशु, आपका एक रीजन जी होता है। एक जी मतलब एक एरिया में आपका एक मैक्सिमम एरिया होता है जहां तक आपका बैंक होता है, उसके जस्ट बाद जी आप देखते हो कि दूसरा बैंक भी होता है। जी मैम। ठीक है। तो आप जी हर बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो अपने एरिया में। अब जैसे मैं रहती हाँ ही राजस्थान में हूँ, तो आई कैंट ओपन जी माय अकाउंट इन राजस्थान ओनली। अब हाँ अहमदाबाद में भी रिंग रोड पे अलग है, और अगर आप जी थोड़ा सा आगे जाओगे तो अलग बैंक है, एक्सिस बैंक की जी ब्रांचेस है। मैम। तो सबका अलग जी अलग रीजन का अपने अपने ब्रांच में ओपन कराना रहेगा। जी मैम। ठीक है। तो आप नहीं उस मैम, ये नहीं कह रहा हूँ मैं मैम, ये मेरा सवाल मैं है समझ कि गया जैसे हिमांशु, मैं। आप बोलना चाह रहे हैं कि आपका कोई रिलेटिव है, अगर उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा कैंडिडेट का, उसका रिलेटिव है बट वो दूर रहता है, तो उसका अकाउंट ओपन कर सकता है या नहीं कर सकता, ये है आपका? नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं अच्छा। ये कह रहा हूँ, अगर जैसे मैंने एक क्लाइंट का ओपन किया बैंक अकाउंट, हाँ। ठीक है ना, उसने कहा मेरे से सर मेरा एक और रिलेटिव है जो हम्म। अकाउंट ओपन करवाना चाहता है आपका, मैंने उनसे हाँ। शेयर किया है आपका, तो वो ठीक भी है। अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, तो क्या हाँ। आप जाके उनके अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो भाई वो हाँ। कहेगा ही ना सीधा, अगर बंदा घर में आ रहा है आपके और आपके अकाउंट ओपन कर रहा है अगर, देखो मैं तो कोई भी बिल्कुल। कैंडिडेट बोलेगा ही बोलेगा कि सर मेरा एक रिलेटिव है उसके यहाँ अभी चले जाइए, उसका भी अकाउंट ओपन कर दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब फिर वहां पे अगर जाएगा कैंडिडेट जो भी जो जॉब पे है, तो उसको फिर अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका जो पेट्रोल खर्चा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर वो कहीं दूर जाता है या फिर कहीं और क्लाइंट से मिलने जाता है, तो उसके लिए 2000 का अलग से एक अलाउंस आता है, सैलरी में लिखा जी हुआ।
बट जी उसके जी लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और ये सब प्रोसीजर रहेगा उसमें। जी जी, मतलब ऐसा वही नहीं मैं होगा कहना कि चाहता हूँ। मंथली सैलरी में जुड़ के आपका अलाउंस ऑलरेडी पेट्रोल का आ गया या फिर वैसा आ गया, वैसे नहीं आएगा। 2000 हाँ का अलग से क्राइटेरिया है, वो जी फॉर्म जी, वगैरह भर के उनको वो हो जाएगा अलॉट। हाँ वही मैं कहना चाहता था कि जैसे यस। अगर कोई कैंडिडेट बोल रहा है कि अगर जाना चाहे तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कैसे भाई। कोई भी कैंडिडेट हायरिंग होने से पहले पूछता है कि सर अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि मैंने अभी 2-3 जगह हायरिंग किया था तो कोई ना कोई सवाल ये करता ही था मेरे से। इसीलिए मैंने एक बार आपसे क्वेरी कर लिया कि जैसे कोई दिक्कत ना बिल्कुल जा सकते हैं, बट जब वो है। ओरिजिनल जॉब में जाएंगे तो नहीं जा जी पाएंगे, वो खुद ही मना कर देंगे कि हमें नहीं जा सकते। जी जी, जा सकते हैं वो बट फिर आइडियल सिचुएशन नहीं। हम्म। वो फिर उनका उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जाने या न जाने का। बट हाँ। जो सवाल रहते हैं वो तो करेक्ट। फिर पूछते हैं तो हमको तो जवाब देना पड़ेगा ना हाँ मैं, जी, हाँ जी। सर की बिल्कुल। हाँ। तो उसके लिए मैंने क्वेरी के लिए सवाल पूछा था कि फिर तो नेक्स्ट टाइम कोई सवाल ना रहे कोई। हाँ, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ओके सर। मेरा एक क्वेश्चन है, जी। कासा डिपार्टमेंट में इनको क्या क्या काम मिलेगा इनको? बेसिक काम तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का ही है, जो 2 अकाउंट्स होते हैं हमारे, वो ओपन करने हैं बाहर जाके। इसके हम्म। अलावा 3-4 और प्रोडक्ट्स है, बैंक के, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, ये सारे इनको मिलते हैं। हाँ, बट जैसे ये एफडी नेसेसरी नहीं है कि एफडी, हाँ, एफडी नेसेसरी वगैरह भी होते हैं, बिजनेस लोन, होम लोन, और उसके साथ में पॉलिसीज वगैरह भी सेल्स करनी रहती हैं इनको, क्रेडिट कार्ड भी सेल करने रहते हैं। उसका बिल्कुल। भी टारगेट वगैरह इंसेंटिव वगैरह मिलता है, क्या इंसेंटिव रहता हाँ, है, कैसे है ये? उन सब का इंसेंटिव मिलेगा और उन्हीं कैसे? चीज़ों के बेसिस पे जो फास्ट फॉरवर्ड हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रमोशन है वो होता है। तो ये बेसिकली करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट तो उनको करने ही करने, प्राइमरी गोल वही है। इसके अलावा हम्म। जो आप बात कर रहे हैं वो क्रॉस सेलिंग में आता है। क्रॉस हम्म। सेलिंग मतलब अगर कोई कस्टमर है, उसके पास गया बंदा, अगर उसके पास करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पहले से ही है और उसको हम्म। रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसको लोन वगैरह और ये सब पिच कर सकते हैं, तो क्रॉस सेलिंग में आ जाएगा। मैंने सुना है कि इसमें कासा में एफडी का भी टारगेट मिलता है उनको, कि एफडी करानी रहती है उनको मंथ में एक या दो। टारगेट नहीं मिलेगा, क्रॉस सेल कर सकते हैं, टारगेट नहीं होगा, टारगेट सिर्फ अकाउंट्स का होगा। क्या इंसेंटिव मिलता है उस पे इनको, अकाउंट्स पे एफडी से? एफडी से एफडी का मेरे को आइडिया नहीं है इंसेंटिव का, एफडी अलग डिपार्टमेंट में आ गया। बट हाँ, क्या बोलते हैं, क्रॉस सेल करने के ऊपर इंसेंटिव ज़रूर होते हैं। ओके। सर इंसेंटिव पार्ट पे मैं बात करूंगा। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ। सर इंसेंटिव इंसेंटिव पार्ट पे मैं बात करूंगा। जैसे कि एज पर एक ब्रांच का टारगेट होता है कि मान लो 200 अकाउंट्स ओपन करने हैं। इन सपोज एक ब्रांच में 3 सेल्स ऑफिसर होंगे या 3 सेल्स मैनेजर होंगे, और इंडिविजुअली टारगेट दिया गया है जो आउटफील्ड सेल्स अफसर हैं। यदि वो 20 अकाउंट्स ओपन नहीं कर पाए और ब्रांच का टारगेट यदि कंप्लीट हो गया तो क्या उन्हें इंसेंटिव मिलेगा एज पर रेशियो के हिसाब से? ब्रांच का टारगेट कंप्लीट हो गया, उसका खुद का नहीं हुआ तो इंसेंटिव मिलेगा, ये क्वेश्चन? इंडिविजुअल को मिलेगा, सपोज 20 अकाउंट नहीं ओपन कर पाया नहीं और मिलेगा। ब्रांच का टारगेट कंप्लीट हो गया, जैसे क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, तो इंडिविजुअली को मिलेगा वो इंसेंटिव या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब इंडिविजुअल ही वर्क करना पड़ेगा 20 अकाउंट, इंडिविजुअल ही वर्क तभी करना। वो एलिजिबल होगा उससे इंसेंटिव के लिए। करेक्ट। अच्छा। और एक चीज सर और है, जो सैलरी आप पार्ट है कि जो फ्रेशर्स होंगे उसे 15,000 रुपये दिया जाएगा, तो उसमें पीएफ और ईएसआई डिडक्ट होंगे उसी हाँ। अमाउंट से? नहीं, वो इन हैंड है, वो फिक्स सैलरी है, वो इन हैंड मिलेगी पर मंथ 15,500 जो है। उसके वो इन अलावा जो, हाँ, इसके अलावा जो हमारी सीटीसी रहती है वो है 18,700, उसके अंदर से वो सारी चीज़ें डिडक्ट होके 15,500 इन हैंड आएगी। जी सर।
और एक चीज़ है सर, जैसे फ्रेशर्स के लिए आपने एज क्राइटेरिया बताया कि जो है वो 21 से 28 होना चाहिए। हाँ और सपोज दैट वो एक्सपीरियंस है कि जैसे आपने बोला कि 9 मंथ होगा 8 मंथ होगा तो काउंट होगा फ्रेशर्स में। इन सपोज दैट आप हायर करें, कोई एक्सपीरियंस है 1 साल से ऊपर है, तो उसका एज क्राइटेरिया क्या है? अगर वो 28 से ऊपर हाँ, होगा तो उसे ले सकते हैं? गुड क्वेश्चन। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, जिनको हम 1 साल से ऊपर 2 साल से ऊपर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, उनका एज क्राइटेरिया 32 है, मतलब 21 से 32। सर ठीक है। ठीक है। सर जो इनकी सैलरी रहेगी एक्सपीरियंस पर्सन की, वो फ्रेशर की ही रहेगी, फ्रेशर के बराबर रहेगी कि थोड़ा बहुत बढ़ जाए? 23 रहेगी। सैलरी 23 रहेगी। क्राइटेरिया सैलरी हाँ बोलिए। क्राइटेरिया हिमांशु सबका डिफरेंट रहता है। ओएस जी वन का जैसे आपको बताया, उसका सीटीसी 18,700 रहेगा, उसको इन हैंड 15,500 रहेगा। अब ये जी होगा ओएस वन। अब इसमें 1 ईयर का जी एक्सपीरियंस होता है, वो आ जाते हैं ओएस टू, ऑफिसर सेल्स जी 2। उनका जी सीटीसी रहेगा 20,800 और इन हैंड उनको जी मिलेगा 18,500। जी ठीक है। फिर ऐसे ही आ जाते 2 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस असिस्टेंट मैनेजर जी पोजीशन, जिनका जी सैलरी क्राइटेरिया रहेगा 27,500 सीटीसी और इन हैंड जी उनको मिलेगी 24,000। जी। और मैम इंसेंटिव वही रहेगी? इंसेंटिव सबको 60 प्लस ही मिलेगा। ओके मैम। ये सनी, आपको क्या क्वारी है? मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे कैंडिडेट हैं वो अकाउंट ओपनिंग के लिए गए, कोई रैंडम कस्टमर मिलता है तो मैम जैसे हम उसका अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, तो उसका कोई चार्ज वगैरह होता है या एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है? सेविंग अकाउंट अकाउंट जब अपन ओपन करते हैं तो अपन को किसी ना किसी, मतलब जैसे मेरे को आपसे सेविंग अकाउंट ओपन कराना है तो मैं जीरो बैलेंस पे तो ओपन नहीं करवाऊंगी। एक क्राइटेरिया ही रहेगा कि मेरे अकाउंट में 5,000 होंगे तो मैं सेविंग अकाउंट ओपन करा सकती हूँ, या मेरे अकाउंट में 1,000 है, या फिर तभी मैं करंट अकाउंट ओपन करा सकती हूँ। ये सब कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के टाइम पे क्लियर किया जाता है। बट मैम जो कस्टमर होगा हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा महिंद्रा, कोटक, एसबीआई, ये तो मैम जीरो बैलेंस वाला अकाउंट भी ओपन करते हैं, तो कस्टमर हमारे पास क्यों आएगा अकाउंट ओपन करवाने के लिए? वो वहां पर भी तो जा सकता है। तो ये उनको ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाता है ना कैंडिडेट को, कि आपको क्वालिटीज बतानी है एक्सिस बैंक की, कि एक्सिस बैंक में क्या क्वालिटीज है, तो आप हमारे पास आइए और अकाउंट ओपन कराइए। ये कैंडिडेट को क्लियर किया जाता है सनी। ओके मैम, थैंक यू। कैंडिडेट की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उनको 7 डेज 6 डेज की ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में उनको हर एक बेसिक चीज बताई जाती है कि किस अमाउंट पे सेविंग अकाउंट ओपन होगा, किस अमाउंट पे करंट अकाउंट ओपन होगा, आपको कैसे कन्विंस करना है आपके कस्टमर्स को, आपको कैसे आपके कस्टमर्स के प्रेजेंटेबल होना है जिससे आपका कस्टमर इन्फ्लुएंस हो। आपको इन अपने कैंडिडेट्स को हर एक चीज के लिए ट्रेंड किया जाता है कि वो कस्टमर्स आराम से ऐड कर सके एक्सिस बैंक में। Okay, so Vartika, last point, just discuss about the how is the training process? ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या कैसे होगा? ऑनलाइन प्रोसेस होता है ट्रेनिंग। ऑनलाइन होता है। टीम आप लोग ये बोल सकते हो कि आपका इंटरव्यू के बाद जो 6 डेज की ट्रेनिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। और तो वो फ्री आप, ऑफ कॉस्ट होगी, हाँ, जिसमें फ्री आपको ऑफ, बैंकिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक बेनिफिट ये भी है उन लोगों के लिए कि यही आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक मतलब इसकी फी लेके ट्रेनिंग देते हैं, और एक्सिस बैंक वाले फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी ट्रेनिंग देते हैं। ऑफ कोर्स ये पता है। यही ऐसी ऐसी बैंक में शायद 14,000 या 24,000 रुपीज़ का फीस लगता है सिर्फ ट्रेनिंग का। एग्जैक्टली राइट। तो अपन ये बेनिफिट भी उनको बता सकते हैं, इससे भी कैंडिडेट थोड़े है ना तो कॉन्फिडेंस में आते हैं अपनी तरफ। उसके सो फाइनली आप कैंडिडेट को बोल सकते हैं कि आपको जो ट्रेनिंग दे जाए, जो लास्ट में 6 डेज के बाद एग्ज़ाम होगा,
उसमें आपको मिनिमम 60% स्कोर भी कवर करना है और इतना टफ नहीं होता, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, हेल्प भी किया जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट है कि उनको सीरियस होकर के ट्रेनिंग पीरियड में वो सीरियस रहें, उनका नेटवर्क एरिया में रहें। ऐसा ना हो कि वो ट्रेनिंग पीरियड में ही गायब हो जाएँ और मोबाइल ऑन करके फिर पता ना चले कि वो सिर्फ प्रेजेंट तो हो गए हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तो ये थोड़ा-सा ट्रैकिंग करते रहिए। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार इंटरव्यू करा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको भूल जाओ। उनको एक बार मॉर्निंग में रिमाइंड कर दो कि डियर आपका इतनी बजे ट्रेनिंग है, एक बार शाम को फीडबैक ले लो कि आपकी ट्रेनिंग कैसे रही दिन भर की। क्लियर? जिससे ये 6 डेज़ जो ट्रेनिंग पीरियड है उनको पता चलता रहे कि हाँ, समवन इज़ देयर हू इज़ सपोर्टिंग टू मी फ्रॉम डे 1 टिल जॉइनिंग, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव उनको एंड टू एंड सपोर्ट करने का है। क्लियर? विदाउट ओके कंप्रोमाइजिंग सर। फेस टू फेस होगी कि ऑनलाइन होगी ट्रेनिंग? ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग। ओके। ओके। और एग्जाम भी ऑनलाइन? यस। मैं एक प्रोसेस आपको समझा देती हूँ। ये जी। जैसे ही इंटरव्यू देने के लिए बैंक पे रीच करते हैं और कैंडिडेट हमें कन्वे करेंगे, आप लोगों को कन्वे करेंगे कि वो लोग इंटरव्यू के लिए पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो यस। आप हमें कन्वे करेंगे कि हमारा कैंडिडेट पहुंच गया है। उसकी मेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका रिज्यूम आप फॉरवर्ड करेंगे। उसकी मेल आईडी पे हम एक लिंक शेयर करेंगे, हायर प्रो लिंक, ठीक है, जिसपे उसको रजिस्ट्रेशन करके टेस्ट देना है, ठीक है। वंस वो टेस्ट देते हैं, उसके बाद हमें उसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि वो रिजेक्ट हुए या वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। हम एज ऑफ आपको कन्वे कर देंगे वो कि आपका कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट है या रिजेक्ट हुआ है। अगर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होता है तो वो इवनिंग में एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड होता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली सारी इन्फॉर्मेशन उसको उस ग्रुप में मिलती रहती है कि उसकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, उसकी ट्रेनिंग कौन ले रहा है, उसकी ट्रेनिंग में कितने कैंडिडेट्स और है। सो बेसिकली किस तरह के ओके। क्वेश्चंस नॉर्मली तौर पे एक फ्रेशर कैंडिडेट से पूछा जा सकता है, ये जो 20 मिनट का टेस्ट होगा ट्रेनिंग के लिए? रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं और थोड़े बहुत इंग्लिश क्वेश्चन होते हैं। जैसे 16 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक अच्छा, है। 16 क्वेश्चन। 20 में, हाँ, इसमें से अपन को 11 करेक्ट करने होते हैं, ओके। ठीक है। 20 मिनट्स का होता है ये, हम्म। ठीक है। रजिस्ट्रेशन देने के बाद टेस्ट स्टार्ट होता है। तो ओनली 1 अटेम्प्ट मिलता है या मल्टीपल अटेम्प्ट ले सकते हैं? 1 अटेम्प्ट होता है ये, ये 1 ठीक है। अटेम्प्ट। और इसमें मैं ये भी चाहूंगी कि अगर आपकी टीम, जैसे अभी एज ऑफ नाउ मैं रजिस्ट्रेशन और मैं टेस्ट करवाती हूँ, बट हम्म। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में से मैं किसी को ट्रेन करूँ प्रॉपर हम्म। तरीके से कि वो भी रजिस्ट्रेशन और टेस्ट करवा सके, तो हम्म। उसके लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि उसका प्रोसीजर अलग है। हाँ, तो आप हमें बताइएगा। मैं अपने जो लीडर्स हैं, रीजनल हेड्स, अपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से रिक्रूटिंग कर रहे हैं, तो लीडर्स को हम आपको मीटिंग में ले लेंगे। आप उनको गाइड कर दीजिएगा जिससे वो डायरेक्टली आपको स्क्रीन्ड कैंडिडेट रेडी करके दे दें। ठीक है, मैं ये डिस्कस करके आपको कन्वे कर दूंगी। हाँ, तो अब उसके लिए इसमें आप ऐसा हमें होता है कि 20 अलग से टाइम क्वेश्चंस होते शेड्यूल दे हैं। दीजिएगा। जी। या श्योर, 20 मिनट्स होते हैं, 16 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन रीजनिंग होते हैं, 8 क्वेश्चन इंग्लिश होते हैं। काफी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। ठीक है। कैंडिडेट्स इजीली दे पाते हैं, बट कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब डर जाते हैं कि टेस्ट के नाम पे क्या आ जाएगा, राइट। वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो उनकी अपन हेल्प कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अपन उनकी हेल्प नहीं करेंगे, अपन उनकी हेल्प करेंगे, ठीक। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद टेस्ट स्टार्ट होता है। टेस्ट सबमिट करने, जैसे ही वो लोग सबमिट करते हैं और अपने पास इंस्टेंट अपने पोर्टल पे आ जाता है कि वो पास है या फेल है, हम्म। हम इंस्टेंट उनको बता देते हैं कि वो शॉर्टलिस्ट है। अगर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट है तो वो इवनिंग तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाता है, और अगर वो शॉर्टलिस्ट नहीं है, रिजेक्टेड है, तो वो बस घर चले जाएंगे। तो टेस्ट नो देने के अदर, लिए उनको क्या कोई डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, नो डॉक्यूमेंट्स, ओनली रिज्यूम, वो भी पीडीएफ फॉर्म में, रेज्यूमे एंड विद देयर ईमेल आईडी एंड नंबर्स इन फोन दैट, नंबर, राइट? राइट, ठीक है। ठीक है। सो और एनी मोर टेस्ट, क्वेश्चन गाइस? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम्म। जैसे अभी अभी जेडी पे पहले अपने को पता नहीं था कि जो फ्रेशर्स है उनकी 15,500 रुपीज सैलरी बेसिक सैलरी रहेगी। अब अपन ने उनको 18K तक का तो बता ही दिया, तो क्या तो आप करना उसको, पड़ेगा उनको? फिर से बोलना पड़ेगा इस चीज के बारे में? नहीं गरिमा, डोंट ऑटो क्रिएट। आप ऐसा कर सकते हो कि आप सीटीसी 18,000 बता सकते हो कैंडिडेट्स को, नो इश्यूज। पीए पीएसआई कट भी रहा है तो एट द एंड वो मनी उन्हीं का है। करेक्ट। ठीक है। हाँ वो मतलब पैसा, अगर नहीं भी बताएंगे तो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा।
नो देखो, है ना? इश्यू। अब तक आपने नहीं बताया है वो अलग चीज है, बट अब आप करो कॉल्स तो उसमें ये क्लियर कर दिया करो कि आपकी सीटीसी 18,500 है, आपको इन हैंड 15,500 मिलेगी, जो डिडक्ट होगा वो मनी भी आप ही का है, आप ही को मिलने वाला है। ओके। हाँ, पहले क्योंकि ये नहीं बताया था हम लोगों ने, पहले हमको ये पता था ना कि जो जो टोटल सीटीसी है वो हमने 18,000 बताया था, पीएफ ऐसा ही ऐसा ये सब कुछ बताया नहीं था हम लोगों को। दैट्स वाई, क्योंकि अभी मैं कैंडिडेट से बात कर रही हूँ तो उस हिसाब से अब उनको जो है फ्रेशर के हिसाब से 15,500 बता देंगे और टोटल सीटीसी 18,500 ऐसे बता देंगे, तो वो क्या हाँ, आप इनको फिर बताएंगे तो आगे उससे डाउट नहीं बेनिफिट होगा। आप बताएंगे तो उससे बेनिफिट यही होगा कि जब उनके पास ऑफर लेटर आएगा ना, जिसमें फिर सैलरी मतलब डिडक्ट हाँ, होकर आती है, तो उससे उनको भाई तब फिर वो कंफ्यूजन नहीं मिसकम्युनिकेशन होगा। नहीं होगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, मिसकम्युनिकेशन भी नहीं होगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि अपन ने उन्हें कुछ गलत बता दिया है और वहां पे कुछ गलत हो गया है ऐसा। एग्जैक्टली। ओके। ओके, थैंक अमृतांशु। और किस हाँ मैम, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि जैसे कई कैंडिडेट होते हैं कि जो है कि ऑनलाइन, जैसे मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, उसका पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उनका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, तो क्या इस केस में कैंडिडेट ज्वाइन कर पाएगा एक्सिस बैंक में, न्यू कैंडिडेट? अमृतांशु, मिनिमम 700 सिविल स्कोर चाहिए ज्वाइन करने। हाँ नहीं, जैसे सर कई कैंडिडेट का सिविल स्कोर डाउन रहता है तो ऑन रोल एम्प्लॉई ज्वाइन करने में नहीं थोड़ा कर सा पाएंगे, परेशानी आता है। 700 से कम है तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो यही चीज़ जानकारी चाहिए थी सर मुझे। थैंक यू सर। सो बेसिकली आप क्या नाउ द फाइनली अमृतांशु एंड टीम, आप लोग ध्यान रखिएगा जब कैंडिडेट से स्क्रीनिंग करिए तो एक जनरल क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि क्या आपने कोई क्रेडिट कार्ड या कुछ लोन वगैरह तो नहीं लिया है जिसका आपका पेंडिंग पड़ा है या ईएमआई ड्यू था। ये थोड़ा सा उनसे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका, उसको बोलिए कि कितना ईएमआई ड्यू रह गया है। या उनसे ये भी पूछ सकते हो कि क्या आपने कभी डिफ़ॉल्टर या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, या फिर आपने, तो उससे क्या लगे कि आप उनसे अगर ये जानना चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। ये हमें आइडिया दे देगा कि वो कैंडिडेट अगर लोन नहीं लिया तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली उसका 700 से ऊपर ही स्कोर रहेगा। और अगर कोई लिया है तो उससे आप क्लियरली पूछ भी सकते हो कि क्या किस तरह का लोन था, कितना ड्यू था। तो आप उसका सिविल स्कोर पैन कार्ड के आधार पे आप हमें हमें दीजिएगा, मैं तुरंत चेक करके आपको बता दूंगा कि कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है। क्लियर? All right. Yes, any more question? Anybody? All right, guys, is thank it you. And thank you, Naman, Vartika, Risha, and anyone else. Okay. And thank you, team, for joining this meeting. And wonderful. And please line up this candidate for 250. That is our target. And we are going to conduct this drive on Thursday. So ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि आपने गुड लाइनअप किया है, बट अभी इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो नाउ कंप्लीट द 250 सो दैट जो हमारा ये अहमदाबाद, सूरत या उसके आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी क्लोजिंग हम वन शॉट में कर सकें। ऑल राइट, थैंक यू, हैव ग्रेट डे, बाय। जब थैंक यू मुझे सर। मुझे एक्सेस बाय देना, सर। मैंने एक्सेस के लिए किया है अप्लाई, रिक्वेस्ट सेंड करिए आपको। हाँ अभिनंदन। यस, मेरा एक क्वेश्चन, ऐसे कोई प्रीवियस, जैसे कोई थर्ड पार्टी के जरिए से अगर जॉब कर रहा है, एक्सेस में ही जॉब कर रहा है, वो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में है या लोन डिपार्टमेंट में है, अगर वो दोबारा से कासा में आना चाहता है तो उसका हो सकता है, अभी वो रिसेंट में जॉब कर रहा है। कर सकता है, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी से कर रहा है। थर्ड पार्टी पे होगा ना, पेरोल पे। अभी पेरोल पे है वो थर्ड पार्टी के जरिए। कर सकता है। ओके। अभिनंदन, अपनी ऑन रोल जॉब है, तो कोई भी ऑफ रोल वाला अगर ऑन रोल में अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मैम एक चीज़ पूछना था मुझे, जैसे भरूच, गांधीधाम, कांडला पोर्ट और भुज के जो बच्चे हैं, तो ये कहाँ पे इंटरव्यू करेंगे? अहमदाबाद जाएंगे या, क्योंकि गांधीधाम, कांडला और भरूच नियर बाई भुज है। गांधीधाम की लोकेशन है हाँ, वो। गांधीधाम, कांडला और जो ये भुज, ये नियर बाई एरिया के जो नियर है, इनका भुज पड़ता है। तो ये बच्चे का भरूच वाले और गांधीधाम वाले और ये कांडला वाले कहाँ जाएंगे इंटरव्यू के लिए?
राम सर भरूच आप का जो स्क्रीन है, देखिए। भरूच की जो ब्रांच है वो दी हुई है, वहीं जा सकते हैं। और भुज वालों के लिए भी ब्रांच दी हुई है, वहाँ जा सकते हैं। बट कांडला पोर्ट जो आप बता रहे हो, वहाँ की कोई वैकेंसी आई नहीं है अभी। नहीं, कांडला तो जो गांधीधाम के पास ही है, तो कांडला अच्छा, भी एक बड़ा एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस साइड में, राइट, समझ नियर गया। नियर सी के। तो वहाँ से भी कुछ बच्चे जाएंगे, तो वो उनको कहाँ भेज सकते हैं हम? उनको बट भेज भुज सकते है या हैं भुज गांधीधाम, में। बट गांधीधाम। दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि उनको जो वैकेंसी, एज पर वैकेंसी जो उनकी पोस्टिंग होगी वो इन्हीं जगहों पे होगी, जैसे भुज हो गया, गांधीधाम हो गया। उनको जी कांडला सर। पोर्ट नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम है इसमें। आप उनको जो जी, भी नियरेस्ट मतलब बच्चे ब्रांच रहता है राम आके से, अटेंड करेंगे ना, उनको लोकेशन मिलेगा जो है गांधीधाम या भुज, करेक्ट। हाँ, सो जो भी क्योंकि नियरेस्ट लोकेशन अहमदाबाद वहाँ रहता से है दूर आप है उनसे काफ़ी। पूछ सकते हैं। और इसकी गारंटी भी नहीं है कि वो इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, क्योंकि जी सर। लोकेशन का सबसे मेन इशू रहता है। क्योंकि पहले कैंडिडेट्स बोल देते हैं कि हाँ हम यहाँ रह लेंगे, हम यूँ कर लेंगे, बट बाद में मुकर जाते हैं। तो एचआर क्या करते हैं, ऐसे कैंडिडेट को कभी सेलेक्ट नहीं करते जो दूसरी लोकेशन से। तो सर, हम ऐसे सोर्स कर सकते हैं कैंडिडेट की जहाँ जहाँ की वैकेंसी है, उसी जगह के कैंडिडेट्स भेजते हैं इंटरव्यू में। राइट, ठीक। सर मेरी क्वेरी ये है, जैसे मेरे पास गांधीधाम के 4 कैंडिडेट हैं और भुज की हैं, तो क्या भुज के कैंडिडेट गांधीधाम में आ सकते हैं सर? कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना सर मुझे? तो भुज का तो अपना एक बैंक में इंटरव्यू है ना, वो गांधीधाम क्यों जाएंगे? जी यहाँ सर आप चेक उनको, करो स्क्रीन पे, गांधीधाम के बाद भुज लिखा हुआ है, उसके साथ में ही ड्राइव का एड्रेस भी लिखा हुआ है। नहीं सर, जगह जैसे मान लीजिए सीट फुल हो जाती है भुज का, उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट होता है, अगर वो नहीं कर पाता भुज में, या किसी कारण से रिजेक्टेड हो जाता है, जैसे मैंने मैम ने बताया अभी कि जैसे कोई कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है, तो वो क्या बाद में गांधीधाम के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये बिल्कुल कर पूछना। सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पर जैसा मैंने एक्सप्लेन करा कि नॉट श्योर कि वो एचआर राउंड में क्लियर होगा। क्योंकि अगर जी मैं भी अगर किसी का इंटरव्यू लूंगा तो मैं ऐसे कैंडिडेट को ही लूंगा, प्रेफर करूंगा जो यहीं रहता है। क्योंकि जी जी 16,000 में कोई अपना घर छोड़ के यहाँ नहीं आने वाला, तो वो जी जी पहले ही बिल्कुल। रिजेक्ट कर देते हैं उसको। तो जी हम भी ऐसे कैंडिडेट्स पे टाइम वेस्ट ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं, वही हमने कहा आपसे एक बार थोड़ा क्लियरेंस कर ले कि अगर जैसे मान करेक्ट। लीजिए कोई कैंडिडेट होता है, वो अगर वो सीट फुल हो जाती है किसी कारण, जैसे अभिनंदन जी भी है, हम भी हैं, बहुत सारी टीम है, तो अगर किसी कारण से फुल हो जाती है भुज की, और वहाँ पे वैकेंसी नहीं होती है, क्लोज हो जाती है भुज की, हाँ, तो क्या गांधीधाम में अगर खाली रहती है जगह या प्लेसमेंट, तो क्या वहाँ पे रख लेंगे कि नहीं रख पाएंगे, हायर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यही पूछना था। वो कर लेंगे, बट वही प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ, वही प्रॉब्लम आएगी कि अगर वो जी जा जी सकता है, वहाँ रह सकता है, तभी उसको हायर करेंगे। जी जी। गांधीधाम और भुज तो सर समथिंग 15 किलोमीटर के आसपास ही रेडियस में है ना सर? हम्म, पर हिमांशु, 15 तो अगर वो लोकेशन उसके नोन नहीं है तो उसको कस्टमर कैसे मिलेंगे? मैम ऐसा तो नहीं मैम, आसपास में तो ये कच्छ और भुज और गांधीधाम, जब मैम वहाँ रह चुका हूँ मैं, तो मुझे तो यही अंदाज है, यही मुझे नॉलेज है कि कच्छ भुज का रेडियस शायद समथिंग 15 to 20 किलोमीटर के आसपास ही है, नियरेस्ट है। हिमांशु, मैं अगर ऐसी कोई क्वेरी है ना, मतलब जी जी डिस्टेंस वाइज, तो जी अपन फिर ये लोकेशंस को साइड कर दो। ये जो ड्राइव जी एड्रेस दे रखा है ना, साइड वाला, सबसे जी राइट में, जी आप उसके हिसाब से बता सकते हैं इन तीनों में से जो भी पास है आपके, सबसे वहाँ चले जाइए इंटरव्यू देने, वही ठीक उसका है। कंसिडर होगा। ओके। ठीक है। ओके, सो लास्ट गरिमा क्वेश्चन। बोलिए। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी मैंने जब परसों के दिन एक कैंडिडेट ने मुझे कॉल की थी, तो तब क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अभी 1 डेढ़ महीने पहले ही एक्सिस बैंक से स्विच करी है जॉब। ठीक है। अब मैंने उनको जो अपनी वैकेंसी है उसके बारे में बताया, तो बोले कि अब मुझे अब 1 साल तक मुझे वहां पे जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसा होता है क्या? मुझे सही इसका बात आइडिया नहीं था, तो मैंने तो उसको लेट इट भी कर दिया। सही नहीं कर बात ऐसा है, नहीं सकते ऐसा वो मिलेगी। होता फिर है से क्या? स्विच। है ना? हाँ, वो बोल रहे थे कि मुझे अभी 1 साल तक उस जगह पे जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा बोल रहे हाँ, थे वो मुझे।
2-3 केसेस होते हैं इसमें अलग-अलग तरह के। अगर उनको निकाला है हाँ खुद से मतलब एक्सिस बैंक वालों ने तो उनको कभी नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने खुद अच्छा से रिज़ाइन करा है तो 18 मंथ्स का गैप होना चाहिए। 18 मंथ का। हाँ। ओके हाँ वही हो सकता है, शायद वो यही बोल रहे होंगे, तो फिर ठीक है। ओके ओके थैंक यू। Hello. I'm mid of meeting. Please call me after 15 minutes. Call me after 15 minutes. Okay, team. Thank you. And I think everyone's question is done. And now start doing recruiting more and more candidates so that we can close it out. Thank you, Namanji, Vartika, Garima, and Richa ji. And thanks for clearing all the थैंक यू doubts. सर। ओके थैंक यू सर। एंड थैंक यू। वर्तिका जी, जो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा, मुझे जो टेस्टिंग पार्ट है प्री स्क्रीनिंग का, आप हमें उसके लिए एक टाइम शेड्यूल दे दीजिए जिससे मैं अपने लीडर को ऑनबोर्ड करके आप उनको गाइड कर दीजिए सो दैट वो डायरेक्टली स्क्रीन करना शुरू कर देंगे। For that sir I'll let you know। और सर मुझे एक बार शीट का एक्सेस देना, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड करी है। ओके ओके, जस्ट विच यूर द ईमेल आईडी यू नीड इट, परवीन यू आर देयर राइट? सो आप हमें वो ईमेल का आईडी Yes, का sir. लिस्ट, हाँ आप हमें सभी ईमेल आईडी दे दीजिए। आई विल गिव द एक्सेस फॉर दिस, Okay, I'll drop you an email, sir. right? Just give me the list of the mail IDs so that I can add it, and please mention the feedback in the respective sheet so that live tracking can be going on. Okay. Okay, sure. All right. Thank you. Have a great day ahead. Bye bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।